अरे फोल्डर के ना how much time I will be speaking with you, you have to decide. It is 3:51. It's roughly around 4. Should we conclude by 4:30? You're all tired. Okay. I'll set an alarm for 4:30. And I have put my mobile on airplane mode so nobody can disturb me. 4:30 ending will give us some little opportunity if at all there are questions. You all know that the Reserve Bank of India conducts the inspection of urban cooperative banks under Section 35. And that is one of the most powerful section in the BR Act. That provides virtual insulation to the Reserve Bank of India officers. So under Section 35, if sir, can you talk? Come here and talk, sir. If you cannot switch off mobile, I have no issues. But if you get a call, please come over here because I get distracted. I regret inconvenience. So what I was talking is Section 35 provides insulation to Reserve Bank of India inspectors. Post amendment of BR Act, the situation is further worsened from the urban cooperative banks angle. You may be aware that there are certain provisions under BR Act which enables the Reserve Bank of India to issue certain guidelines which cannot be challenged in any court in this country. That being the situation, Reserve Bank ने एक बार आपको कुछ बोल दिया तो आपको सुनना है, आपको वो कंप्लाई करना है. और वो कंप्लाई करने की वजह, सिंपल वजह मैं आपको बताता हूँ. मैं कई जगह पे ये रीज़न कि वाई वी हैव टू कंप्लाई, रीज़न उसका सिंपल है. रीज़न ऐसा है कि many of you or almost all of you are having driving license, right? You have a driving license which will be of a two-wheeler type or a four-wheeler type or whatever. You must have license to drive a vehicle. Now, once you hold a license, you follow the traffic rules. यानी हरी बत्ती लग गई तो आपकी गाड़ी चलती है, लाल बत्ती लग गई तो वो रुक जाती है, आप गाड़ी नहीं चला सकते हो. कोई देखने वाला नहीं होगा तो भी आप फॉलो करते हो. क्यों फॉलो करते हो? You have a license and the provisions of Motor Vehicle Act are applicable to you. You simply follow that. Same corollary applies to the urban cooperative banking sector. You are a license holder. Who has issued you the license? It's the Reserve Bank of India which has given you the license. And therefore, the role of Reserve Bank of India is not only that of a traffic management, but to look at your vehicle. How your vehicle is. जैसे कि अभी कुछ नए नियम आए हैं जिसमें 15 साल पुराना व्हीकल होगा, डीजल वाला होगा तो उसको आपको रोड पे नहीं ला सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह. The same logic, let us understand, as a urban cooperative banker, Reserve Bank जो भी कहने वाला है, you have to follow. You do not have any option to argue with them. Argue in what sense? कि ये आपने गलत काम किया है, ये आप कैसा कर सकते हो. You simply have no scope, legally or otherwise. Now, the subject that has been given to me is ये जो रिजर्व बैंक का अंडर सेक्शन 35 आपका इंस्पेक्शन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. छोटी बैंक होगी तो शायद 2 या 3 साल में एक बार आते हैं. आपकी अगर शेड्यूल बैंक है तो हर साल आते हैं. और आप कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो हर 2 महीने बाद भी आ सकते हैं. आज एक नया फंडा सुनने में आया है, वो ऐसा है कि एक रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर एक बैंक में गए, छोटे
400-500 करोड़ के बैंक में गया है, और वहाँ पे कुछ 50-60 लोन थे 50 लाख के ऊपर, ये बंदा सिर्फ 25 लोन देख पाया। अब ये बंदा जब सिर्फ 25 लोन देख पाया तो उसने रिपोर्ट क्या दिया कि देयर आर 60 लोन्स बियॉन्ड 50 lakhs बट आई हैव सीन ओनली 25 loans. He submitted a report. What Reserve Bank of India did, you know? Reserve Bank of India appointed an external chartered accountant to verify all the loan accounts at the cost of the bank, and that too under Section 35. There is a separate provision where Reserve Bank of India can conduct an inspection of your bank, not necessarily by its own officers, but they can do it otherwise also. This being the story, what has changed post BR Act amendment? A lot of things have changed. और जिसको हम कहते हैं ना कि आग में घी डालना, वो आग में घी डालने का काम हुआ है तुम्हारे पीएमसी ने किया है। PMC incident, I did not talk about it, but then PMC incident has created virtual credibility crisis for the sector. The credibility crisis was there for Reserve Bank of India also. Reserve Bank of India took a lot of brickbats on that, कि आपने क्या देखा। तो उसका जवाब ऐसा आता है कि 10 दिन के लिए बंदा आएगा रिजर्व बैंक का, वो क्या देखने वाला है, सब नहीं देख पाता है। तो 16-17 के बाद में इन्होंने नया ट्रिक निकाला। क्या नया ट्रिक निकाला? उन्होंने आपसे डेटा डंप लेना चालू कर दिया। I don't know, many of the banks might have seen that, but the bigger banks, they have to provide a data dump. वो डेटा डंप देने के बाद में they have certain utility tools based on which the data that you give is analyzed. तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर जब आता है तो वो डेटा डंप, जो हमारा डेटा है वो हमारा डेटा देख के वो हमें प्रिसाइजली कैसे पूछ सकता है कि ये अकाउंट निकालो, वो अकाउंट निकालो, वो अकाउंट निकालो। 100 अकाउंट है, प्रिसाइजली कैसे देखता है वो? तो डेटा डंप देने के बाद में डेटा डंप के ऊपर रिजर्व बैंक की टीम काम करती है, एंड दे आइडेंटिफाई द एबरेशंस दैट एग्जिस्ट इन योर बैंक। सीधा सवाल है या शायद सीधा जवाब है, जब मैं डेटा डंप दूंगा तब मैं खुद ये देखना चाहूँगा कि मेरे डेटा डंप में क्या इनकन्सिस्टेंसीज है, और अगर वो इनकन्सिस्टेंसीज मैं निकाल के अगर डेटा डंप देता हूँ तो रिजर्व बैंक को कुछ नहीं मिलने वाला। It's only on the basis of 179 returns that you have to submit, they will be asking you the questions. और रिजर्व बैंक भी पागल तो है नहीं, वो सोचते हैं। तो उन्होंने बीच में और एक इसमें मामला जोड़ दिया कि डेटा डंप आप हमें भेजिए मत, हम आके ले लेंगे किसी भी दिन। इसका मतलब क्या है कि वो आपके बैंक में आएंगे, आपके सर्वर को प्लग करेंगे, डेटा डंप लेंगे, आपको कोई चॉइस नहीं बचता है या चांस नहीं बचता है उसमें कुछ सुधार लाने के लिए। Reserve Bank of India is quickly and rapidly becoming tech savvy in terms of inspection, and we urban cooperative banks continue to lag in terms of tech savviness. That's where basically the issue commences. हम लोग सब चिल्ला रहे थे ना कुछ साल पहले कि ये ड्यूअल कंट्रोल हमें बहुत तकलीफ देता है, ड्यूअल कंट्रोल हमें बहुत तकलीफ देता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो BR Act अमेंडमेंट आ गया, भले वो PMC की वजह से आया होगा, लेकिन ड्यूअल कंट्रोल वर्चुअली ख़त्म होने को आया। इज ओनली सिंगल कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग मैटर्स। कल भी मैंने कहा कि आपको आपके रजिस्ट्रार की सुननी नहीं है बैंकिंग मैटर्स में। नो, यू आर नॉट, यू आर गाइडेड ओनली बाय द इंस्ट्रक्शंस एंड सर्कुलर्स विच आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको दूसरा कुछ सुनना नहीं है। अब जब नए सिरे से इंस्पेक्शन आ रहा है तो उसमें बदलाव क्या क्या आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत, आप सोच नहीं सकते हो। आपकी बैंक अगर छोटी है और आपका अगर रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन पेंडिंग है, ड्यू है,
तो आपको ये जो हम बैंकों के समिट में ये कहते हैं कि यू गेट एन एडवांटेज, दैट एडवांटेज यू विल गेट टुडे, कि हाउ एंड व्हाट टू प्रिपेयर फॉर. They are asking you almost over 1,000 questions and 179 returns they are asking. अब ये 1,000 questions किस बारे में है? आपके क्रेडिट पोर्टफोलियो के बारे में है, आपकी ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, आपके बोर्ड के बारे में है. 100 सवाल. अब ये जो 100 सवाल है ना, वो इस तरह से उन्होंने तैयार किए हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 मान लो, क्वेश्चन नंबर 42, ये 42 का जो भी आप जवाब दोगे लिखित रूप में, उसका क्रॉस चेक होगा क्वेश्चन नंबर 797 में. इसका मतलब ये है कि जितने भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दे आर इंटरट्वीन्ड. ऑल द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन टू यू, दे आर इंटरट्वीन्ड. एंड अनदर ट्रिक दैट दे डू इज दिस. आपका बैंक समझो संडे को बंद होता है, सैटरडे को हाफ डे होता है, तो वो क्या करेंगे, आपको फ्राइडे को मेल कर देंगे कि हमें एक दिन में ये पूरा डेटा चाहिए. आप सोचते हो कि कल मेरा हाफ डे है, संडे को बंद है, तो गए 2 दिन इसमें ही. और एक नया ट्रिक चालू हुआ है इंस्पेक्शन में. नया ट्रिक क्या हुआ है, उसको ये कहा जाता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में ये कहा जाता है एंड ऑफ डे सिंड्रोम. वो जो एंड ऑफ डे वाला सिंड्रोम जो है ना, आपका जो एसएसएम होगा या जो भी आपकी टीम होगी इंस्पेक्शन, अभी टीम्स असाइन हो गई है बड़े बैंकों के लिए, तो वो टीम आपको कुछ सवाल पूछते हैं, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हैं. 2 बजे मेल करेंगे, वो कहेंगे कि एंड ऑफ डे सबमिट करो, शाम को 5 बजे तक सबमिट करो. फिर आपको गिड़गिड़ाना है, या तो सिस्टम में डेटा है, सिस्टम में डेटा नहीं है, जो भी है. दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक. Pressure tactic in the sense that you should get a least possible time to tinker with the information that you are going to give. Reserve Bank of India will continuously try to take information from you. There is a scheme of things which is going on wherein some banks, Reserve Bank can access the database directly. There are 10 banks on pilot. So these 10 banks on pilot, what Reserve Bank of India is doing, they are not asking anything. They are connected to a server. And then they have utilities and tools. What these utilities and tools do? They try to track your internal financial statement, maybe one day late. जैसे आपके यहाँ जो डमी सर्वर होगा उसको कनेक्ट होके वो डेटा एनालाइज करते होंगे और आपसे फिर सवाल पूछते होंगे. तो इंस्पेक्शन के आयाम पूरे बदल रहे हैं. आपको याद होगा कुछ साल पहले, यानी आज भी, रिजर्व बैंक का कैमल्स रेटिंग पे वो रेटिंग आपके बैंक का करते थे, ए बी प्लस सी वगैरह वगैरह. जैसे परसों कल मैंने आपको बताया था कि सी और डी में शायद 300 या 400 के आसपास बैंक है. इसका मतलब ये कि 1000 के आसपास बैंक ए और बी प्लस में है, यानी अच्छी है बैंकें. यहाँ पे सब अच्छे बैंकर्स हैं. सी और डी वाले अवार्ड ही नहीं मिलता है तो वो यहाँ आते ही नहीं है, तो उनको ये जो समझना है वो समझ नहीं पाते हैं. मैंने पिछली बार भी एक बार कहा था कि बैंकों शुड ऑर्गेनाइज a workshop for the banks which are in C and D category for the benefit that they upgrade themselves to the category of B. तो ये जो मायने अभी चेंज हो रहे हैं, ये because of BR Act, lot of things are changing, a lot of dynamics has come here, and your response time, they will give you least possible response time. Your response time they are going to judge. To what extent you are accurate, to what extent you are correct. मैं कोई भी रेगुलेटरी पॉलिसीज जो आई हैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पैर बांध दिए हैं और आपको भागने के लिए कहा जा रहा है, जो लिटिल डिफ़िकल्ट है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो भी स्टेबल हो जाएगा. I was referring to the concentration risk circular wherein you have to reshuffle your portfolio substantially. That also will be now tracked almost every quarter.
अभी रिजर्व बैंक का जो इंस्पेक्शन आ रहा है, जब मैं कहता हूँ कि रेटिंग पे ऊपर वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं या रेटिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि पूरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर वो रिस्क पैरामीटर्स पे माइग्रेट कर रहे हैं, रिस्क पैरामीटर्स पे माइग्रेट कर रहे हैं। आपकी बैंक लो रिस्क है, स्टेबल रिस्क है, मीडियम रिस्क है या फिर हाई रिस्क है, इट इज़ देयर इंटरनल असेसमेंट दैट दे डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन दे आर कंडक्टिंग। इसका मतलब ये है कि आपका जो ए रेटिंग, बी रेटिंग, सी रेटिंग, जो भी है रेटिंग है, वो आपका रेटिंग आप ही के पास रहता है, आप किसी को बता नहीं सकते हो, बिकॉज इट इज़ कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, यू आर नॉट सपोज टू प्रिंट इन योर एनुअल रिपोर्ट। उसको जोड़ के इस साल की इंस्पेक्शन में और पटाखे फूटने वाले हैं। What's going to happen? You have some 31st August या फिर 30th September circular. The circular is about presentation and disclosure norms. आपने सुना होगा 80 पन्ने का सर्कुलर। ये मार्च 22 की आपकी बैलेंस शीट वो सर्कुलर के हिसाब से बननी चाहिए, वो डिस्क्लोजर आपके आने चाहिए। और सबसे बड़ा डिस्क्लोजर उन्होंने इस बार लाया है, बाकी के डिस्क्लोजर तो आसान और कॉमन है, तो वो जो डिस्क्लोजर लाया है वो कस्टमर कंप्लेंट के बारे में लाया है। कस्टमर कंप्लेंट का जो एज प्रोफाइल होगा या उसका रेजोल्यूशन प्लान होगा, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्लोजर लाया है। बहुत सारे डिस्क्लोजर्स उसमें नए नए आए हैं, 2-3 जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। Coming back to the inspection styles, let me tell you, they are not going to do a complete analysis of your entire bank coming into your office. They are doing their homework in their office by getting data from you. It's a big change that has come. वो शायद आपके पास 7 या 8 दिन आएंगे, उसके ऊपर रहेंगे भी नहीं, and they will be asking you pointed questions. और वो pointed questions पूछने के बाद में वो प्रोबिंग उसी एरिया में करेंगे जहाँ पे आपका जवाब जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स है, उससे मेल नहीं खाता है। देन देयर विल बी प्रोबिंग, देन देयर विल बी अ डीपर क्वेश्चनिंग, डीपर एनालिसिस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। जो जैसे मैंने कहा कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट पहले आता था, आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन रिपोर्ट 20-25 पन्ने का होता था और वहाँ पे वो एविडेंसेस देते थे, वो क्यों ऑब्जेक्शन, किस चीज़ पे किस लिए ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। और एक चीज़ उस वक्त होती थी कि उनके जो कमेंट्स होते थे, वो कमेंट्स के नीचे वो 2-3 शब्द लिखते थे। एक शब्द लिखते थे एक्शन और दूसरा शब्द लिखते थे परसिस्टेंट एक्शन, तीसरा शब्द लिखते थे वायलेशन। दे वेर ट्राइंग टू इंडिकेट कि भाई ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर आपका एक्शन होना ज़रूरी है। पिछले इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आपको कुछ कहा गया होगा और वो आपने किया नहीं होगा। इस बार की इंस्पेक्शन में भी वो पॉइंट आएगा, लेकिन वहाँ पे ब्रैकेट में आएगा परसिस्टेंट एक्शन। और अगर आपने किसी रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन किया है या आपने कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं तो वो वायलेशन करके लिखते थे। अब ये जो मेथड थी वो मेथड बदल रही है। वो मेथड इसलिए बदल रही है कि वो रिस्क पे जाना चाहते हैं। पूरा इंस्पेक्शन जो है उसके अभी उन्होंने 2 पार्ट कर दिए हैं। देयर आर 2 पार्ट्स और अदर 3 पार्ट्स। मतलब विच आर द 2 पार्ट्स? 1 पार्ट इज popularly known as IR, that is inspection report, and the second part is risk assessment report, RAR. And what is the annexure that they are giving? The annexure that they are giving is LOI. Now what is that LOI? List of instances. आप सब जानते हैं, आप सब जानकार हैं, so you know how it is happening. इसका मतलब ये है कि वो आपको वायलेशन के बारे में ये रिपोर्ट में लिख नहीं रहे हैं। आया इंस्पेक्शन रिपोर्ट 15-20 पन्ने का होगा,
आरएआर आपका 15-20 बनने का, वो क्या क्या देखेंगे, बहुत सारे रिस्क एंगल्स जो है गवर्नेंस के हैं, रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस होंगे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, जो भी रिस्क बैंकिंग रिलेटेड है, उस हर एक चीज़ के बारे में आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ में वो आरएआर का सेपरेट रिपोर्ट आपको देंगे। वो आरएआर का रिपोर्ट आपको क्या इंटरप्रेट करना है, दैट इज अ सिग्नल गिवन टू द बैंक, एंड दैट इफ द बैंक इज नॉट एक्सेप्टिंग the improvement or is not improving, then in the subsequent inspection वो अलग तरह से आपके बैंक को देखेंगे। वो आरएआर के बारे में आपका जो एरिया होगा, जैसे मानो क्रेडिट, वो क्रेडिट रिस्क के बारे में उनका रिपोर्ट आने के बाद में अगर आपके एनपीए बढ़ गए हैं या अगर आपके एनपीए अच्छे हैं तो वो रिस्क रेटिंग उसी पैराग्राफ में नीचे लिखेंगे कि दे विजुअलाइज अ मॉडरेट रिस्क इन योर क्रेडिट पोर्टफोलियो और दे विजुअलाइज अ वेरी हाई रिस्क इन योर क्रेडिट पोर्टफोलियो। ये अलग अलग तरीके से हर जगह पे होगा, हर एरिया में ये होगा। अब जब ये हर एरिया में होगा तो जैसे मैंने कहा कि नाउ एंटायर वे ऑफ रेगुलेटिंग बैंक्स इज माइग्रेटिंग टू रिस्क असेसमेंट। और अगर आपके बैंक ने इस बारे में सोचा नहीं है या इस बारे में कुछ किया नहीं है, इफ यू आर डन नथिंग अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, यू विल हैव टू डू। इस वक्त कोई गाइडलाइंस नहीं है। रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कोई गाइडलाइंस दी नहीं है। उन बैंकों को गाइडलाइंस दी है जिनके एसेट्स 5,000 करोड़ के ऊपर है। 5,000 करोड़ के ऊपर अगर आपके एसेट्स हैं, एसेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, आई एम टॉकिंग ऑफ एसेट्स, देन यू मस्ट हैव अ चीफ रिस्क ऑफिसर। अगर आपके एसेट 3,000 करोड़ के ऊपर है, देन यू मस्ट हैव चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। नंबर शायद उलट सुलट हुआ रहेगा, लेकिन दे आर प्रिस्क्राइबिंग दीज पर्टिकुलर डेजिग्नेशन टू लार्जर बैंक्स, इट हैज नॉट कम टू यू। फॉर अ स्मॉलर बैंक दे हैव टू टेक अ क्लू फ्रॉम दिस। वो क्लू क्या लेना है कि भाई मेरे बैंक में रिस्क कहाँ कहाँ है, मुझे लिख के रखना है। मेरा एक सीधा सवाल है, हम इतने 25-30 साल से बैंक चला रहे हैं, गलत लोगों को पैसा नहीं देना is a risk management which you have been doing. Now if you are doing this, what you need to do is that convert that into a document. Of course इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी बैंक अच्छी है तो आप रिस्क मैनेजमेंट बिना कोई डॉक्यूमेंट होते हुए भी करते हैं। उनका फोकस जो शिफ्ट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। आप आपके बोर्ड मिनट्स में, मुझे कोई पानी का बोतल देगा? या मेरा लिंक टूट गया। कहा व्हाट आई वाज टॉकिंग? या हालांकि ये बड़ी बैंकों के लिए है, लेकिन आप भी अपने यहाँ एक बंदे को इस एरिया में काम करने के लिए लगा सकते हैं। किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यू नीड टू थिंक ऑन दैट। जो वायलेशन वाला वो लिखते थे पुराने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, वो पैराग्राफ में नीचे लिखते थे वायलेशन है ये। It was followed by a different method. Then there would be a separate show cause to you. You will explain why this is not violation. All this will happen. आजकल वो वायलेशन को अलग तरीके से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि रिस्क एमिनेट हुई है, whether it is regulatory or otherwise, वो आपको एक RMP बना के देते हैं, रिस्क मिटिगेशन प्लान बना के देते हैं। आपके बैंक में ये 3-4 चीज़ें हैं, ये गलत तरीके से हो रही है। डायरेक्टली वायलेशन पे आपको एक्शन नहीं लेंगे, आपको समझ लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रांजिटरी स्टेज वेयर थिंग्स आर हैपनिंग इन अ डिफरेंट वे। लेकिन वो रिस्क मिटिगेशन प्लान जब देंगे ना, तो आपको डेडलाइन देंगे,
टाइम बाउंड रिस्क मिटिगेशन प्लान होगा और वो टाइम बाउंड उसका कंप्लायंस आपको देना है। माइंड यू, रिस्क मिटिगेशन प्लान पे अगर आपसे टाइमली कंप्लायंस अगर होता नहीं है, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद आता है, इट इज स्ट्रेटअवे ट्रीटेड एज वायलेशन। यानी आपको एक बोल दिया कि आपको ये 30 सितंबर के पहले ये चीज़ करनी है, वो अगर आप नहीं करते हो, देयर इज़ नो मिडवे, दिस इज अ स्ट्रेट शो कॉज। It has become such a strict and tough for the urban cooperative bank. So take care in the area where things are happening in this fashion. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बीच में कुछ बड़े बैंकों को एक डिटेल मेल भेजा था। मैं कुछ उसके पॉइंट्स होंगे वो आपको बताऊंगा क्योंकि मेरी बैंक को वो मेल आया है, हर एक बड़े बैंक को वो मेल आया है। क्या कहते हैं वो? These are 18-19 areas, and in these areas, if they find you wanting, if they find that you are not doing things the way Reserve Bank of India expects, it will be taken up as a violation. तो ये 15-20 पॉइंटर्स जो है वो आपको मैं बताऊंगा, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। उसकी वजह एक ही होगी कि ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखो, इसके ऊपर कोई आनाकानी मत करो, बी फर्म ऑन दैट। उनका सबसे ये कहना है कि रिजर्व बैंक के जो इंस्ट्रक्शंस है इन टर्म्स ऑफ आईरैक नॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ वेरियस अदर नॉर्म्स, द रेगुलेटेड एंटिटीज आर नॉट इंटरप्रेटिंग देम करेक्टली। जो रिजर्व बैंक के सर्कुलर आते हैं उसके ऊपर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करती है। One of the area where they are focusing on violation. दूसरी चीज, सेक्शन 6 और सेक्शन 8, BR एक्ट का सेक्शन 6 और सेक्शन 8 जो है, उसके अलावा अगर आप कुछ बैंक, आपकी बैंक कुछ करती है तो वो वायलेशन है। बीच में एक उदाहरण मैंने सुना था, सच है झूठ है पता नहीं, एक बैंक ने एक मैरिज हॉल वाले को लोन दिया, लोन एनपीए हो गया, वो बैंक ने वो प्रॉपर्टी पोजीशन में ले ली, बेची नहीं, और बैंक ने वो हॉल भाड़े से देना चालू कर दिया। तो बोरोर जो पैसा नहीं भर रहा था, प्रॉपर्टी बैंक ने पोजीशन में ले ली और दे स्टार्टेड रेंटिंग आउट दैट पर्टिकुलर हॉल। यू कैन डू दैट, you can do that. And this is just an example. I know the name of the bank but I would not like to quote the name. और एक चीज़ रिजर्व बैंक बार बार कहती है, हम लोग मानते नहीं है, इट इज़ रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आप अगर मास्टर सर्कुलर और इन्वेस्टमेंट देखोगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो कैटेगरीज है HTM, HFT, AFS, ये जो कैटेगरीज में शिफ्टिंग अगर करना है तो वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर करना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ द ईयर उन्होंने इंडिकेट किया है, अभी साल भर में नहीं किया, नवंबर में आपने शिफ्टिंग कर दिया, मार खाओगे रिजर्व बैंक से। तो अगर आपको शिफ्टिंग करना है, नॉर्मली अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त में करते हो तो आपको डिफेंड करना ज़रूरी होता है। अगर आप सितंबर के बात करते हो शिफ्टिंग, तो दैट्स अ स्ट्रेट वायलेशन, बिकॉज दैट्स नॉट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। They have kept it open, but you have to be careful, and that's an area where they have identified. और HTM में से बेच के प्रॉफिट बुक करना गुनाह है। You can't do that. If you are doing it, that's a straight violation. और हमारे जो डायरेक्टर दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए, उनके रिश्तेदार, परिवार, किसी को लोन देना, हर एक क्वार्टर में एक बैंक ऐसी निकलती है कि जिसने डायरेक्टर रिलेटेड लोन दिए हैं, एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पेनलाइज्ड देम। हर एक क्वार्टर में, अब देख लो लिस्ट। हम वही गुनाह बार बार करते हैं, और अगर वही वो बार बार करते हैं तो हमें सीखना चाहिए कि ये करना अपने इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं है, क्योंकि रेपुटेशनल रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप ये कहोगे कि हमें कोई रेपुटेशन रिस्क नहीं है, पेनल्टी लगाने तो हम हमारे मेंबर्स को बोल देंगे रिजर्व बैंक को पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए छोटी गलती के लिए हमसे पैसे ले लिए, क्योंकि बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। मेनी बिगर बैंक्स हैव डन दिस, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल बैंक्स इंस्टेंसेस, बट
you have to be very careful, and there is a separate master on this, and this master describes what is a conflict of interest, what is interested party, what is substantial interest. ये पूरा definition 21 का एक master circular है, loans to directors and related entities. पढ़ लो आप, आपको कोई परेशानी नहीं होगी. आपकी जो CBS जो चलाते हो, उसकी डेटा इंटीग्रिटी के बारे में रिजर्व बैंक को बहुत सारी खामियां मिलती हैं. और आपने बीच में न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ क्विकली माइग्रेटिंग टू एवरीथिंग ऑनलाइन, नो ह्यूमन इंटरवेंशन. तो आपके NPI आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन होने चाहिए, डेली होने चाहिए, प्रोविजनिंग क्वार्टरली होनी चाहिए, प्रोविजनिंग ऑनलाइन होनी चाहिए. होती है क्या आपकी? होती ही नहीं होगी, क्योंकि कोई CBS वेंडर पैदा नहीं हुआ है जो आपको प्रोविजनिंग ऑनलाइन देता है. आपको SMA 0, SMA 1, SMA 2 ऑनलाइन करना है. करते हो आप? अब कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें जो कोडिंग का काम है ना, ये सॉफ्टवेयर कंपनी को अभी जमा ही नहीं है ठीक से. तो हम देसी जुगाड़, इंडियन जुगाड़, ओवरड्यू लिस्ट पुट इनटू SMA बकेट्स. तो ओवरड्यू लिस्ट हमारा सिस्टम से जनरेट होता है. तो ओवरड्यू लिस्ट जनरेट होता है तो हमारा SMA भी उससे ही निकलता है. दैट कैनॉट बी द आंसर. दैट कैनॉट बी द आंसर. एट द क्लिक ऑफ द बटन, एट द एंड ऑफ द डे, दिस प्रोसेसेस शुड रन. तुम्हारा IT जो काम करने वाला है वो 24 घंटा काम करेगा, रात को ये सब प्रोसेसेस करेगा. चॉइस बचा नहीं है. अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन करते हो तो उसको ये वायलेशन मानने वाले हैं. अभी एक बैंक में बड़ी अजीब चीज़ हुई, वो मुझे आपको बताना ज़रूरी है. आपका जो CBS है और आप जो ओवरड्यूज निकालते हो या EMI निकालते हो या NPA का आइडेंटिफिकेशन करते हो, वो ओवरड्यू निकालने की एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. सिस्टम में तुम्हारे DP टेबल बनते हैं, वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, DP टेबल बनते हैं. तो एक बैंक ने वो DP टेबल वगैरह छोड़ दिया सब. उन्होंने क्या, देसी फॉर्मूला, क्रेडिट सबमिशंस ऑफ द अकाउंट, डिवाइड EMI एंड देन टेक आउट हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर ओवरड्यू. दिस इज नॉट द मेथड. ये मेथड क्यों नहीं चलने वाला हो, क्यों नहीं चलने वाला है? सीधी सिंपल बात है. रिजर्व बैंक EMI पे आपको NPA आइडेंटिफाई करने के लिए बोल ही नहीं रही है. वो क्या बोल रही है? डेज. दे आर टॉकिंग ऑफ डेज. और तुम्हारा किसी का भी CBS का सॉफ्टवेयर डेज पे नहीं काम कर रहा, क्योंकि तुमने लॉजिक क्या दिया है. सोचो, यू नीड टू रीविजिट दैट. और ये जो इंफॉर्मेशन आप निकालते हो, स्पेशली अगर मल्टीपल सोर्स से निकालते हो, PMC के बाद दूध का जला छाछ भी फूक कर पी रहा है. यू विल कम अंडर देयर ग्लेयर. आपके यहाँ फ्रॉड होता है. टेंडेंसी क्या होती है? छुपाओ, मरोगे. फ्रॉड छुपाओगे, मरोगे. आप पिछले 1 साल में नॉन रिपोर्टिंग ऑफ FMR इन टाइम कितनी पेनल्टीज हुई है देख लो आप. नॉन रिपोर्टिंग कमर्शियल बैंक को भी हुई है. अभी बीच में एक बड़े बैंक को हुई 1.5 करोड़ की फॉर नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉड इन टाइम. सो लेट्स नॉट टॉक ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, लेट्स टॉक ऑफ आवरसेल्व्स. फ्रॉड हो गया है, हो तो गया है, प्रोवाइड तो करना है. You have to make, I mean, earlier there were no such provision instructions, but even those instructions have now come. Why play with fraud? तो हो गया ना. तुम रेगुलेटरी रिस्क मत पैदा करो, रिपोर्ट करो, मामला खत्म कर दो. CBS के बारे में रिजर्व बैंक का जो IT सेल सीसाइड जो है, वहाँ से रेगुलर अलर्ट आते हैं, और उन अलर्ट पे अगर आपने एक्शन नहीं लिया या आपके IT टीम ने एक्शन नहीं लिया तो उसे भी वायलेशन ट्रीट किया जाएगा. या पक्की बात समझो. एक और बड़ी चीज़ इस वक्त रिजर्व बैंक अलग अलग तरीके से देख रही है, वो ये है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग FIU इंडिया की मीटिंग में जा चुके हैं. मैं गया हूँ.
सिर्फ गाली खाने के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे। एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर आई हैव अटेंडेड अ मीटिंग इन दिल्ली, FIU इंडिया। उन्होंने मेरी वो पूरी स्क्रीन पे कुंडली लगा दी कि तुम्हारी बैंक ने ये रिपोर्ट ये टाइम पे नहीं किया, ये रिपोर्ट गलत किया, ये रिपोर्ट ये टाइम पे नहीं किया, पूरी कुंडली लगा दी। एंड दे फायर यू लाइक हेल। क्यों फायर करते हैं इसकी वजह जानते हैं आप प्रिंसिपल ऑफिसर अगर होंगे तो आपने रिपोर्टिंग अगर ढंग से नहीं किया तो आपको 6 महीने तक सजा है। वो जो जेल जाने की सजा है वो FIU इंडिया इन्वोक नहीं करती है, रिजर्व बैंक वो नहीं कर सकती क्योंकि उसके अधिकार PMLA के तहत FIU इंडिया को आ चुके हैं। सो रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन जैसे CTR, STR, NTR जो है टाइम पे करो। दूसरी चीज़, इसी क्लू को पकड़ के रिजर्व बैंक ने एक एडवाइजरी दी है, वो ऐसी है, यू हैव टू मॉनिटर द ट्रांजैक्शंस ऑफ योर अकाउंट्स रेगुलरली। यू डोंट हैव अ सिस्टम टू डू दैट बट यू नीड टू हैव दैट सिस्टम। एवरेज बैलेंस अकाउंट में 25,000 है और अचानक उस अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, आपको सवाल पूछना है कहाँ से आए 5 लाख? साल में या महीने में अगर 1 करोड़ का टर्नओवर होता है, अचानक उस अकाउंट में 10 करोड़ का टर्नओवर आ गया, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड कीप एविडेंस ऑफ योर इंक्वायरीज। satisfy yourself that the transactions are genuine and आपने अगर नहीं किया है और during inspection on the basis of data that you submit, if they get something they can pull up your legs. DEF आप जानते हैं, डिपॉजिटर्स एजुकेशन फंड, टाइमली ट्रांसफ़र नहीं करोगे वायलेशन पकड़ा जाएगा, वायलेशन ट्रीट किया जाएगा। सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए स्पेसिफिक एडवाइजरी, आप किसी भी आदमी का सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हो, द लिस्ट दैट दे हैव गिवन। और हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा सुना भी है कि ट्रस्ट अकाउंट के भी सेविंग्स अकाउंट खोले जाते हैं। ट्रस्ट अकाउंट के सेविंग अकाउंट तब खोले जाते हैं जब उनको सेक्शन 12(1) में या इनकम टैक्स का ATG का उनको सर्टिफिकेशन है, तभी ट्रस्ट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो उनको करंट अकाउंट ही खोलना है। 2016 की गाइडलाइन है, वायलेशन करोगे परेशान हो जाओगे। बीच में एक बड़ी बैंक को ये जो मिनिमम चार्जेस वगैरह लगाते हैं ना, वो ढंग से नहीं लगाते, क्योंकि मिनिमम चार्जेस आपको प्रोरेटा बेसिस में लगाने हैं। गाइडलाइन जो है ना कस्टमर सर्विसेज की, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपको मिनिमम चार्जेस लगाना है तो वो प्रोरेटा बेसिस पे लगाना है। आपकी सिस्टम क्या करती है, सब घोड़े बारह रख के सबको लगा के फ्री हो जाती है। द बैंक वॉज पनिश्ड फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन 25 लाख रुपीज़। आई वुड नॉट लाइक टू कोट द नेम। टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल। आप ऐसी कोई डिपॉजिट स्कीम मत लाना जो तुम्हारे रेगुलेटरी नॉर्म्स के बाहर हैं। जैसे कि डिपॉजिट रखो, एक चांदी का सिक्का लेके जाओ, यू कैन डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। इफ़ यू आर डूइंग इट, स्टॉप इट। या फिर स्कूली बच्चों के सेविंग अकाउंट खोलना और उनको बस्ते देना या बैग्स देना, स्कूल बैग्स देना, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। एंड देन NPA नॉर्म्स के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। डाइवर्जेंस अगर 10% के ऊपर निकलता है तो यू हैड इट, सो डोंट डू दैट। और एक चीज़ जिसके ऊपर अभी 3-4 पनिशमेंट्स हुई है, 3-4 बैंकों को पेनल्टी हुई है। आपका करंट अकाउंट वाला क्लाइंट अगर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, सो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द सेटलमेंट ऑफ क्लेम यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट द सेविंग्स रेट। Banks don't pay. There were 4 banks which were penalized heavily for this. वो चारों नामचीन बैंक्स हैं, लेकिन ये पकड़ा गया है। So why I am sharing you this? Because you should know how it has to be done. सिबिल के तो आप सब मेंबर होंगे ही, लेकिन रिजर्व बैंक ने ना 2005 में एक सर्कुलर निकाला था, जो बाद में 14 में रिपीट किया, कि जितनी भी देश में CICs है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है, सबकी सब्सक्रिप्शन लो। आप उनसे इन्फॉर्मेशन या डेटा वेरिफिकेशन करते हो या नहीं करते हो, ये बात अलग है। मेंबर सबके बनो, अगर आप मेंबर नहीं हो तो तुरंत बन जाओ। दैट इज ऑल्सो व्यूड एज अ सीरियस वायलेशन। और फिर KYC के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं है। और जो इवेंट्स, मेजर इवेंट्स होते हैं वो डिस्क्लोजर में आने चाहिए। जैसे कि कोई फ्रॉड अगर प्रोविज़न आप करते हो तो वो डिस्क्लोजर में आपको लाना है, एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि जो वो आजकल इन चीज़ों के फिराक में रहते हैं। दे आर ट्राइंग टू हंट दिस
numbers for you, I mean sorry, the instances in your bank, and if these instances are found, there is no midway. एक ज़माना था कि हम लोग हमारे दोस्त हुआ करते थे, वो हमको हेल्प करते थे रिजर्व बैंक में, हेल्प करते थे। आजकल रिजर्व बैंक में हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आपके पहचान वाला जो होगा ना, वो यूबीडी में होगा या डॉस में होगा, डॉर में होगा, लेकिन उनके इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में कौन काम करता है ये आपको आखिरी तक पता ही नहीं चलेगा। वायलेशन हो गया तो सोच लो कि पेनल्टी हो गई, वो बचाने का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप आपके पास है इस वक्त। यू सी टू इट दैट यू डू इट करेक्टली एंड यू डोंट फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रैप। मुझे लगता है कि मुझे जो रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन का जो तरीका बदल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, मेरा समय हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। सब्जेक्ट बहुत सीरियस है इसलिए थोड़ा सीरियस हो गए हम लोग। कुछ सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर चलिए। सर जो हमारे सीडीएस पे ये नहीं है तो आरबीआई क्यों प्रोवाइड नहीं करती है बैंकों के लिए एक ही सीडीएस? कभी नहीं करेगी आरबीआई, जिंदगी में नहीं करेगी। वजह बताता हूँ, दे आर नॉट बैंकर्स, दे आर रेगुलेटर्स। नहीं ना, होगा ही नहीं। ये क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे समझो 50 बैंक बैठी हैं, तो मेरा ये मानना है कि डिपॉजिट साइड में यहाँ पे कम से कम 500 प्रोडक्ट्स होंगे, हर एक के अलग अलग प्रोडक्ट। वही है, नाम अलग है, रचना अलग है, सब अलग है। दिस इज वन पार्ट। सेकेंडली, हर एक बैंक को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की ब्यूटी ये है, वो लोकली स्ट्रांग होने चाहिए। वो अगर लोकली स्ट्रांग होते हैं तो उनका जो निश मार्केट है, लोकल मार्केट है, उसके फैसिलिटेशन के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपको देखना है। आपको एक ही चीज़ कंफर्म करनी है, वो ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला बंदा है वो CMM 7 लेवल का सर्टिफिकेट आपको दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMM 7 लेवल सर्टिफिकेशन? सिक्योरिटी फीचर्स आर स्ट्रॉन्गर। यानी ऐसा नहीं है ना कि आज आपने एंट्री कर दी, आपका डे एंड हो गया तो फिर वो आप एंट्री रिवर्स कर सकते हो। ये अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर वाला बंदा आपको पैचेस देता है, सॉफ्टवेयर गलत है आपका। सिंपल टेस्ट है। सी, यू आर नॉट अ टेक्नोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजिस्ट, बट द पॉइंट इज, अगर तुम्हारे सॉफ्टवेयर बंदे में आपका जो CBS का एग्रीमेंट होगा उसमें वो एक अंडरटेकिंग देता है कि जो भी रेगुलेटर बोलेगा वो मैं आपको चेंजेस करके दूंगा। करता नहीं है वो, 6 महीने लेता है वो। आपको उसके पास जो ओरिजिनल जिसने प्रोग्राम लिखा होता है ना, वो आदमी उसके पास होता ही नहीं है, फिर बाद वाले बंदे को लिखने को होता ही नहीं है। यू नेवर गेट रिजल्ट्स। सॉरी। तो इस वजह से ये जो आप बोल रहे हैं ना कि रिजर्व बैंक क्यों नहीं सॉफ्टवेयर दे रही है, इसकी चर्चा 2006-07 पहले हुई थी। हमारे काले साहब भी उस वक्त वहाँ पे DGM थे, और मुझे याद है कि रिजर्व बैंक ने उस वक्त कुछ अमाउंट भी कमिट करी थी, कुछ 600-700 करोड़ हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के। आगे क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक को ये ध्यान में आया ये आसान चीज़ नहीं है और ये करना उनका काम भी नहीं है। इट इज़ नॉट देयर जॉब। आपने उनसे लाइसेंस लिया है, आप सुजुकी लेते हो, मारुति लेते हो, हुंडई लेते हो, रिजर्व बैंक का कोई लेना देना नहीं है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ योर चॉइस एंड योर जॉब। यू हैव टू इंश्योर दैट योर सॉफ्टवेयर कंप्लाइज विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स। सिंपल। और कुछ सवाल? मैं समझा नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़ा आगे आके बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। आपका जो सॉफ्टवेयर देने वाला बंदा होगा ना, मराठीत बोला बिंदास, काय प्रॉब्लेम नाही, मी हिंदीत करून सांगेन। तुम्ही मॉड्यूल RBI ने क्लिअर करावं असं तुमचं म्हणणं आहे? म्हणजे काय आहे, म्हणजे जे समजतोय ते हेच ना?
वो मॉड्यूल रिजर्व बैंक से चाहिए। रिजर्व बैंक सप्लाई के तो अच्छा होगा। हाँ, वो मैं उसी चीज़ का जवाब दे रहा था। ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है यार, रिजर्व बैंक बैंकर नहीं है। आप हमेशा रिजर्व बैंक के नाम में बैंक जरूर लिखा है, लेकिन दे आर नॉट बैंकर्स, यू आर द बैंकर्स, यू हैव टू डिसाइड। एंड देन जैसे आप रिसेंट का झमेला मैं आपको बताता हूँ। ये कोविड जब हुआ तो 6 महीने का मोरेटोरियम दिया, आपने सब में दिया होगा। कितनी परेशानी हुई रिस्टोर करने में, बताओ मुझे आप। पागल हो गए थे सब। मोरेटोरियम तो दे दिया, तुम्हारे पूरे जो सिस्टम थे वो घूम रहे थे। और उसके बाद में 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि 2 करोड़ के ऊपर को भी आप रिफंड करो। एवरीथिंग वॉज समथिंग विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैनॉट हैंडल, बिकॉज दैट इज नॉट देयर डोमेन। बैंकिंग इज नॉट देयर डोमेन, बट रेगुलेशन इज। आपने क्या काम करना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ये आप पुराने बैंकर आप अगर होंगे, यानी 90 के पहले, तो बैंकिंग वॉज ईजी, वेरी ईजी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वॉज डायरेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर के सब रिजर्व बैंक बोलेगी वही रेट चलते थे मोटा मोटा। 91 के बाद में सब चेंज होना चालू हो गया। 270 डेज का आईरैक का नॉर्म्स आ गया, ग्रेजुअली फ्रीडम आ गया। वर्किंग कैपिटल मेथड का फ्रीडम रिजर्व बैंक में दिया तो बैंकों की बोलती बंद हो गई कि आप वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का मेथड आप डिसाइड करो। किसी के पास कोई न्यूटन तो है नहीं। जो पुराने मेथड MPBF और 20% ऑफ एनुअल फिजिबल टर्नओवर, वही मेथड आज भी चल रहे हैं। 40 साल हो गए। रिजर्व बैंक ने बोल दिया आपको फ्रीडम चाहिए ना, ले लो फ्रीडम। पसीने छूटने लगे। जो पुराने बैंकर से वो जानते होंगे, टंडन कमेटी, चोरी कमेटी, नॉर्म्स, 15 इंडस्ट्रीज को थे, दिमाग खराब होता था। जो सीनियर बैंकर्स हैं, जोशी जी जो बैठे हैं, वो भी जानते होंगे। हालांकि वो उनकी ज़िंदगी पूरी रेगुलेटर की रही है। तो फ्रीडम देने के बाद में, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। फ्रीडम का मतलब ये है यू हैव टू हैव दैट फ्रीडम विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ रेगुलेशन। जो दिल में आएगा वो करो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होगा भी नहीं ना। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की सोच थी 5 साल पहले की, वो सोच अब काम में नहीं आ रही है। और हम उस सोच को बदल नहीं रहे हैं। हमें उस सोच को बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? थिंग्स आर चेंजिंग। जो 10 साल हमने जिस सोच में निकाले, वो 10 साल में जो हमने किया, वो आगे के 10 साल में यूजलेस हैं, यूज नहीं कर सकते। So the changing times, you are not changing yourself, you are doomed. कल एक सवाल आया था कि हम बैंक को पसीना बहा के बड़ा करते हैं, और रिजर्व बैंक कौन आती है बोलने वाले कि डायरेक्टर्स को लोन नहीं देना। Who is रिजर्व बैंक, राइट? उसका एक्चुअली जवाब एक ही था, आपके पैसे से दो ना यार। डिपॉजिटर्स के पैसे से दे रहे हो तो रिजर्व बैंक बीच में आएगी, क्योंकि आपने DICC के 5 लाख का प्रोटेक्शन लेके रखा है ना। तो रिजर्व बैंक जो कहेगी वही करना है। बात सिंपल है, उसमें सोचने की या चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। नहीं करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो भुगतो, आज नहीं तो कल। आई बिलीव आई हैव एक्सीडेड माई टाइम लिमिट। अगर कोई सवाल नहीं होगा तो हम लोग रुकेंगे। आदमी नहीं है उनके पास, देंगे ही नहीं आपको। तो आप लेटर लिख के चुप बैठो, अपने लेटर लिख के चुप बैठो। एक्चुअली आपका कंप्लायंस कंप्लीट कब होता है? जब नेक्स्ट टाइम इंस्पेक्शन वाला बंदा आता है ना, तो वो देखता है आपने जो कंप्लायंस दिया वो सच है या झूठ है। उसके बाद में वो कहता है, जैसे मैंने पुराने इसमें कहा कि एक्शन एंड परसिस्टेंट एक्शन। परसिस्टेंट एक्शन क्यों आ गया? कि आपने जो कंप्लायंस दिया वो ठीक नहीं था, या अधूरा था, या पूरा नहीं था। वो पॉइंट उसने रिपीट किया, परसिस्टेंट एक्शन। इसका मतलब ये है कि पिछले साल के इंस्पेक्शन का कंप्लायंस आपका पूरा नहीं हुआ है। वो आपको ऐसे लेटर, ऐसी कोई आप राजस्थान से है ना,
Let me tell you, Reserve Bank of India has got 30-40 offices. तो हम नागपुर रीजन वाला बंदे क्या करते हैं या फिर यहाँ पे क्या करते हैं पता नहीं है. क्लोज कर दिया. पहले होता था कि हम देख सकते कि कंप्लीट हो गया, फिर उसको हम बोर्ड में लेते थे. हाँ. तो आपने कंप्लायंस करने के बाद कंप्लायंस अगर आपने बोर्ड में ले लिया है तो बात खत्म हो गई है, क्योंकि ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है रिजर्व बैंक से कंप्लायंस सर्टिफिकेट आना चाहिए. ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है. हो तो मुझे बताओ. They see Reserve Bank can continue certain practices and discontinue at their will. वो बताएंगे नहीं आपको, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे. जहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर छोटा है ना, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी अच्छी है. महाराष्ट्र गुजरात में सेक्टर अगर बड़ा है तो अर्बन डिपार्टमेंट या तुम्हारा जो रेगुलेशन और सुपरवाइजरी वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है. क्यों कम है? दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. देयर इज कंसिस्टेंट विजिल. तो बहुत सारी चीज़ें रिजर्व बैंक ने बंद कर दी है. आपने अभी बीच में देखा होगा कि कम से कम 150 सर्कुलर उन्होंने कैंसिल करवा दिए किए ना बीच में 1-2 महीने पहले. दे हैव डिसकंटिन्यूड सेवरल थिंग्स. उसमें कम से कम 4 या 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग को अप्लाई होते थे, वो कैंसिल करवा दिए उन्होंने. इसकी वजह यही है कि थिंग्स आर चेंजिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज चेंजिंग, and then if we are not in the sync with that change, you have problems. Yes, sir. Due to the staff negligence, CRR was breaking for 2 or 3 times in a year. CRR was implemented on 3 days in whole year. During the inspection, RBI noticed this and they penalized the banks. The director recovered this amount from the staff members and deposited. Now RBI has sued all the directors, chairman, MD and staff, the concerned staff. Yeah, directors are not involved in day-to-day activities of the bank. Then how the directors are liable for this bank? आपने जो पेनल्टी रिजर्व बैंक का जो लगा था वो आपने कंट्रीब्यूट किया, बैंक ने नहीं दिया. करेक्ट. यही पहला वायोलेशन है. This is the first violation. See, what are the guidelines under penalty? Guidelines are very simple. Bank has to pay. There was a clamor from various other organizations कि जो अच्छे डिपॉजिटर्स हैं उनको क्यों पनिश करे, क्योंकि उनका प्रॉफिट का हिस्सा कम हो गया. I mean, this is all moral. But then, as a board member or the entire board team or the top management or the entire staff is basically responsible for compliance. Directors not involved in day-to-day activities. How can they know that the CRR is not? Therefore, precisely, this is a grey area where you are expecting a guidelines. Guidelines are very simple. आप गुजरात से हैं ना, या आप गुजरात की बात कर रहे हैं. महाराष्ट्र में एक बैंक ने किया और ये 50 लाख का नहीं 50 लाख का किया. बताऊँ क्या किया? बैठो, आप बैठो, बताता हूँ मैं. देन यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस. 50 लाख का पेनल्टी हो गया आईरैक नाउस के वायलेशन पे, और वो 50 लाख उन्होंने सब एम्प्लॉयज़ ने कंट्रीब्यूट किए, तो P&L के डेबिट में आया नहीं वो. राइट. बैंक ने क्या किया? डिस्क्लोजर में ले लिया. P&L में डेबिट नहीं आया, डिस्क्लोजर में ले लिया. रिजर्व बैंक इज स्टिल नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. दिस इज पॉइंट नंबर 1. सिमिलर केसेस हैपेंड विथ यू. देयर इज अ CRR डिफॉल्ट. नॉर्मली अगर एक बात बताऊँ मैं आपको सच्चे दिल से, अगर आपके यहाँ आपसे कोई वायोलेशन होता है, आपको नज़र में आता है, इन्फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट टू देम, मीट देम. इट इज़ नॉट एवरी वायोलेशन is viewed strictly because they are humans, you are also human. So what do? I have seen where the CRR defaults are pardoned by Reserve Bank of India merely with a genuine admittance. आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे गलती हो गई है, जेन्युइनली बताओ, जेन्युइनली जाके बोलो उनको. आप जैसे ही बंदे हैं, एक आधा खड़ूस बंदा होगा वो नहीं मानेगा, वो आपकी तकदीर है या फिर मेरी तकदीर है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी टॉलरेंट. इन व्हाट सेंस? मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं 25 साल के बाद बोल रहा हूँ. दे आर टॉलरेंट. इट्स ओनली व्हेन यू ट्राई टू कंसील फ्रॉम देम दे आर नॉट टॉलरेंट. सो डोंट कंसील. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हें क्या बीमारी हुई है सब बताते हो, सेम वे टेल देम. डू नॉट गिव फॉल्स कमिटमेंट. एक बैंक के NPA बढ़ गए, बुला लिया CGM ने
क्या कर रहे हो, 6 महीने में रिकवर करेंगे। आपको मालूम है आपके अगर एनपीए 25-30% के ऊपर हो गए हो और आप वो सीजीएम को बोल रहे हो कि 6 महीने में करूंगा, विच इज इम्पॉसिबल। दिस इज बीइंग डिसऑनेस्टी। यू बी ब्लंट, टेल देम मुझे 2 साल लगने वाले हैं, दे विल बी पेशेंट विथ यू। मैंने कई बैंक्स देखी हैं जो 18 और 20% ग्रॉस या के ऊपर चलने के बाद भी रिजर्व बैंक ने एक्शन नहीं लिए एक ही तराजू में। दी गाइज आर ट्रांसपेरेंट, दी गाइज आर ऑनेस्ट एंड गाइज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी ये जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हो ना, इसका कोई लॉजिकल गाइडेंस है ऐसा कुछ नहीं है। या रिजर्व बैंक ने पेनल्टी कैसे वसूल करनी है, तो उन्होंने 2 ही गाइडेंस दिए हैं। बैंक हैज़ टू पे द पेनल्टी, इसका मतलब ये है कि बैंक हैज़ टू डेबिट P&L, बैंक हैज़ टू डिस्क्लोज। 2 चीज़ें हो गई, बात खत्म। अभी एक बड़े सियाने बैंक ने, मल्टी स्टेट बैंक है, बड़े सियाने बैंक ने क्या किया, 50 लाख एम्प्लॉइज से रिकवर कर लिए, डिस्क्लोजर में है, रिजर्व बैंक पेनलाइज्ड वगैरह वगैरह वगैरह। नाम नहीं लेना चाहूँगा, गलत होगा नाम लेना, पर ये गलत है। He is wrong. He is non-compliance of what Reserve Bank of India is saying. Penalty हो गई ना, you have to tell your members these were the circumstances. दिन हमारे ध्यान में नहीं आया, CRR डिफॉल्ट हो गया, गलती हो गई हमारे। Be honest. That will help. That will help. एक काम करते हैं सर, बाहर मिलके आपस में बात करते हैं क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। यस सर। आरबीआई जो है आकर बैंकों का ऑनलाइन इंस्पेक्शन करता है, तो कल ये सभी बैंक को अप्लाई हो, सभी बैंक का कर सके। कोविड खत्म हो गया ना सर, कोविड खत्म हो गया। कोविड के दरमियान मेरे बैंक का भी 10 दिन ऑनलाइन हुआ, एक ही दिन मेरे आए। Well, let me honestly tell you, online is more rigorous than offline. ऑफलाइन में आप सामने सामने बात कर सकते हो, यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू कन्विंस। ऑनलाइन पे क्या होता है, वो बंदा व्हाट्सअप कॉल लगाता है, तुम व्हाट्सअप पे बात करते हो, 10 बार कॉल कट होता है, आप फिर 10 बार लगाते हो, उसको लगता है तुम 10 बार डिलीवरेटली कट करते हो, ऐसी सब चीज़ें चालू हो जाती है। ऑनलाइन इज नॉट अ हेल्दी साइन। Offline, yes, you are in a position to converse and be transparent. जब अपना डाटा सब आरबीआई के पास जाता है, तो वो इंस्पेक्शन के लिए अपने वहाँ नहीं आएगा, वहाँ से इंस्पेक्शन करेगा। नहीं, वो आएगा इंस्पेक्शन को सर, क्या करेगा वो, डाटा जाएगा ना आपका, तो सिर्फ 10 सवाल लेके आएगा। आपके कपड़े कहाँ फाड़ने हैं वो सोच के आएगा बराबर, तो कम टाइम लेके आएगा। प्रोग्राम का टाइम आजकल 14 दिन से 10 दिन कर दिया है, 10 वर्किंग डेज कर दिया। क्यों कर दिया है? हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग एक चीज़ नहीं करते हैं, डेटा डंप के लिए हम लोग कैट टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना तुम्हारे सीए करता है इस्तेमाल, वो करते हैं कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्नोलॉजी। वी डोंट यूज, स्टार्ट यूजिंग इट। फिर रिजर्व बैंक को कोई सवाल नहीं मिलेगा। एक तो एनपीए क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना नहीं है, वो तुम्हारा जो ऑडिटर होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो भाई, जो एनपीए क्लासिफिकेशन होगा करेक्ट करने का। गलत हो गया, रिजर्व बैंक ने कुछ बोला, अगले बार तेरे को असाइनमेंट नहीं दूंगा, परफेक्ट होगा, जाने ही नहीं बीच में। मेजर एरिया अगर निकल गया एनपीए क्लासिफिकेशन का, बचा क्या फिर बचा ये है कि आपने ये ब्रांच ने वो रैंप नहीं किया, वो जो डिसेबल्ड लोगों के लिए वो व्हील चेयर का एक्सेस नहीं किया। ऑल दिस क्यूरीज विल कम, चलेगा, इससे वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको वो पनिश भी नहीं कर सकते। सो गिव देम क्यूरीज विच आर परचुटन इन नेचर, जिसको हम कहते हैं कि चलो ठीक है अगली बार कर लेना, नॉट फॉलिंग इन टू दैट पनिशमेंट काइंड ऑफ ट्रैप। योर बैंक शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव टू हैव 3-page इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अभी अगर 20 पन्ने का है तो वो 3 पन्ने का लाओ, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, रिजर्व बैंक की टीम जब आती है ना, वो जो जवान बंदे होते हैं ना, उनको परफॉर्मेंस दिखाना है उनके बॉसेस को, तो आपको छोड़ते नहीं है, वो आपको छोड़ते नहीं है। तो यू हैव टू प्रिपेयर इट डिफरेंटली, don't give him an opportunity. Then there is one more area where they are entering now very aggressively, that is CKYC, UCIC, all these areas. एक भी बैंक इस दुनिया में नहीं है कि जिसका 100% CKYC, EKYC और KYC हो चुका है, एक भी नहीं है। It's only the quantum vis-a-vis the live account, कितना पेंडिंग है, वो आपको पनिश नहीं करेंगे। लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वो छोड़ेंगे भी नहीं आपको। क्यों छोड़ेंगे? दे आर द रेगुलेटर्स।
They are the regulators, and now all tech-savvy guys are coming. एक ज़माना था कि इंस्पेक्टर को बेचारे को वो CBS का कुछ ढंग से समझता भी नहीं था, तो UCBs were at the advantage. Now that's not the story. You don't have that advantage. हर एक टीम में 2 बंदे ऐसे होते हैं, ये झटके में पकड़ लेंगे आप जो बोल रहे हो. So thank you guys. It's already 4:50. Thank you so much.